Dear students, due to some technical error, the voice could not be recorded. So this whole written questions were recorded. So I am now explaining these questions along with my voice. Okay. So question number 33. 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant of acid. देखो dissociation constant of acid means कि acid जो है that will dissociate like this. CH2FCOOH, it gives rise to CH2FCOO negative ion plus hydrogen ion. तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ka will be the molar concentration of fluoroacetate ion and hydrogen ion divided by the molar concentration of fluoroacetic acid. Okay. Now first of all, because when we know the observed value of depression in freezing point, and if we calculate with the help of these values that have been given, so we can calculate I by using the formula, that is observed freezing point depression divided by calculating freezing point depression. Now for calculations, delta TF is equal to Kf into M. Here M is the molality. तो मोलालिटी के लिए तो Kf की वैल्यू 1.86, मोलालिटी के लिए मास ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास. मोलर मास इज CH2FCOOH का 78 है, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम. तो फ्रॉम हेयर आई कैलकुलेटेड डेल्टा TF equal to 0.93 Kelvin. Now Van 't Hoff factor is equal to observed freezing point depression divided by the calculated freezing point depression. So observed is given 1. Okay. So 1 and this we have calculated 0.93. So 1 divided by 0.93 equal to 1.0753. So this is the first part answer, Van 't Hoff factor. Okay. 1.073. So this is the answer. Okay. Then now we have to calculate Ka. अब Ka के लिए because we need the concentration, so what we will do that T0 पे if the concentration of acid is C, then since time is 0, so it has not been dissociated, so concentration of ions जो है that is 0. Okay. Let alpha be the dissociated. अब जब alpha dissociate हो गया from 1 mole, तो C से कितने हो जाएंगे? Let अगर C moles initial हैं तो C alpha. Okay. तो इक्विलिब्रियम पे it would be left is रिएक्टेंट्स के जो मोल्स बचेंगे वो होंगे C माइनस C अल्फ़ा, और C अल्फ़ा फ्लोरोएसिटेट आयन के दे विल बी फॉर्म, और हाइड्रोजन आयन के भी C अल्फ़ा. तो यहाँ से हम Ka की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके. तो Ka की वैल्यू से ओके, अब हाउ वी विल डू द वैल्यू ऑफ Ka. ओके. अब Ka जो है दैट इज़ तो वैल्यू ऑफ के मोलर कंसनट्रेशन. अब फर्स्ट आई को कैलकुलेट करने के लिए आई बिकॉज वी नीड आई का हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया था, वैन 't Hoff फैक्टर यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन अब हमें अल्फ़ा भी चाहिए. ओके. तो अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए देन अगेन आई पुट सेकेंड फार्मूला ऑफ आई, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. ओके. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फ़ा इज़ लेफ्ट ऑफ द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट्स में C अल्फ़ा, तो यहाँ से सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए. तो I का फॉर्मूला C इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C, तो दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा. ओके. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई? I माइनस 1. I वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1.0753, उसमें से 1 माइनस किया तो अल्फ़ा 0.0753 ये आ गया. अब Ka का हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा. तो इसमें अब आपके पास अल्फ़ा है, C इज़ द मोलालिटी, मोलालिटी को कैलकुलेट कर लिया, दैट केम आउट टू बी 0.5. तो 0.5 इंटू 0.753 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.0753. तो दिस केम आउट टू बी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Ka 3.07 इंटू 10⁻⁻3. That is dissociation constant of acid. Okay, so this was question number 33. अब question number 34.
Vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 mm of mercury. Calculate the vapor pressure of water when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. Glucose is dissolved in water. Molar mass of glucose 180, C6H12O6. Okay, और water का molar mass 18. अब we know the mass of glucose, molar mass of glucose, mass of water, molar mass. तो इससे हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन की. अब वेपर प्रेशर के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज. देखो पी नॉट 17.535 माइनस सॉल्यूशन की हमें कैलकुलेट करनी है. पी नॉट की वैल्यू ले ली और इसके ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 25 बाय 180 प्लस 450 बाय 80. ठीक है, तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया राइट हैंड साइड को, तो इट केम आउट टू 1/181. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 17.535 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 181. ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे 1/181 करके, तो ये आ जाएगा. तो पी एस की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन इट विल कम आउट टू बी 17.4 mm ऑफ मर्करी. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 35. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35, इट इज़ बेस्ड अपॉन हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to power 5 mm of mercury. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of mercury. Okay. तो KH की वैल्यू गिवन है आपको. Okay. प्रेशर गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी टर्म. अब सॉल्युबिलिटी टर्म इसमें क्या है? X. Okay, that is a मोल फ्रैक्शन. तो मोलैलिटी गिवन है मिथेन, अच्छा हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है और वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी. तो के एच इंटू एक्स, पी इज इक्वल टू के एच एक्स. पी की वैल्यू 760, के एच की 4.27 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 और एक्स हमें निकालना है. तो डायरेक्ट निकल रहा है 1 डिवीज़न करो तो 178.10 रेज़्ड टू पावर -5. Then question number 36. 100 gram of liquid A, molar mass 140 gram per mole, was dissolved in 1000 gram of liquid B, molar mass 180 gram per mole. Vapor pressure of pure liquid was found to be pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if total vapor pressure of the solution is 475 torr. Total vapor pressure P is equal to PA plus PB. अब PA PB हम कैलकुलेट कर सकते हैं. PA किसके इक्वल होता है? P नॉट A इंटू एक्स है. P नॉट B इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स पी. ओके, P नॉट A हमें गिवन है, एक्स बी पहले निकालते हैं. प्योर लिक्विड का गिवन है B का. ओके, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए 100/140 0.714. लिक्विड बी के 50/9 5.55. यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट कर ली 0.714 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ ए एंड बी, इन दोनों के मोल्स. ये आपका ए का मोल फ्रैक्शन आ गया. और एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, 0.114. तो दैट कम्स आउट टू बी 0.886. अब पी टोटल किसके इक्वल है? डॉल्टन लॉ है कि पी ए प्लस पी बी, और पी ए अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ किसके इक्वल होता है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी. तो इन दोनों की प्लेस पे पी ए की प्लेस पे पी नॉट ए एक्स ए, पी बी की प्लेस पे पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल. पी टोटल हमें गिवन है 475. पी नॉट ए हमें कैलकुलेट करना है. ओके, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. तो वैल्यूज़ पुट करके देन वी विल कैलकुलेट पी नॉट ए. तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपकी सारी इस तरह से सॉल्व हुआ स्टेप बाई स्टेप. 475 में से 443 माइनस हो गए,
32 divided by 0.114. Okay, so that is P naught A जो है that will come out to be 281 torr. Okay, फिर उसने पूछा आपसे कि प्रेशर इन द वेपर फॉर्म, तो वो होता है P naught A इंटू मोल फ्रैक्शन. ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 32 torr. तो दिस इज़ द, तो पी ए पूछा ना, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. पी नॉट ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एक्स ए 0.114 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 32 torr. ओके, सो दिस वॉज नाउ द क्वेश्चन टिल वी हैव डन 36. ओके, so till 36 now we have finished. Okay then. Now only a few questions are left and the exercise will be over. Okay, after that I hope that you all are doing side by side and all of you are now you have completed this exercise questions and now you are perfect, okay, in solving the questions of solution.